function test. In the previous class we have been talking about the Java function test. In today's class we will talk about the gastric function test. Please don't talk. Before really jumping into the concept of the gastric function test, first we need to understand the composition of gastric juice. The gastric juice, the gastric function test, mainly going to talk about the gastric juice. Okay? That's the reason we will be talking about the gastric juice. So gastric juice in the composition, water 99.5%, the composition is that, and solid substances are 0.5%. Even though the solid percent are very minute in the quantity, but they are having a very significant role. Okay, they are very present in a very minute quantity, even though they are having a very significant role. Now, coming to that solid substances, we are going to divide into the organic and inorganic substances. Inorganic substances, the list of the chemicals they have been given, that is hydrochloric acid, sodium, calcium, potassium, bicarbonate, chloride, phosphate, and sulfate. Whereas coming to the organic substances, the enzymes are mainly contributed to this organic substances, that is pepsin, gastric lipase, gelatinase, and urease. There are other substances also there, mucus and intrinsic factor. यहाँ पे बच्चों intrinsic factor जो बात हुई वो clotting factor वाला intrinsic factor नहीं है. ठीक है, it is not the same clotting factor. Clotting mechanism, intrinsic factors and extrinsic factors, that is not applicable over here. It is an intrinsic factor which are internally present in the gastric environment, which are generally responsible for the reabsorption of vitamin B12. Intrinsic factors. ठीक है, यहाँ पे intrinsic factor clotting factor वाला intrinsic factor नहीं है. ठीक है, so these intrinsic factors they are helping us for the reabsorption of the vitamin B12 inside your body. When I will feed into the ceiling test, that at the time I'll tell you about the intrinsic factor. Hopefully it will help. Okay. Now, gastric juice, it is a clear pale yellow with strong acidity. Nearly the pH is about 1. Okay. 1 से लेके 6 तक acidity environment है. The pH scale. So it is standing on the 1. That means that how much acidity it can be present. We can identify. Acidic कोई भी चीज रहना है तो उसके अंदर कोसी concentration बढ़ जाएगा ना. H plus ion. H plus ion के अंदर किसकी concentration बढ़ जाएगी. The more concentration of the H plus ion is going to get present, the substance will become more acidic. Okay. Now composition, secretion of the gastric juice. Generally, we know the concept that whenever the oxygen, carbon dioxide is going to make a combination with the water. We are going to make the water, then the product will be going to come out in the form of carbonic acid. H2CO3 in the presence of enzyme carbon anhydrase. मैं जल्दी इस वास्ते बोल रहा हूँ आपको because ये आप concept पहले पढ़ चुके हैं in the acid discharge. ठीक है, carbon dioxide when they are going to combine with the water, they are going to liberate a molecule called carbonic acid. And we know that if the carbonic acid is going to get formed in the form of H2CO3, they are going to have the dissociation into the bicarbonate and H plus ions. Bicarbonate and H plus ion. Now, if you are going to see the partition which has been divided into 3, that is lumen, parietal cell. Generally, these parietal cells are responsible for producing the HCl inside your body. अच्छा जो ये lumen and parietal cell की जो बात हुई, parietal cell की जो बात हुई, वो lining of the gaster है. These are the lining of the gastric. So these parietal cells are generally responsible for the producing the HCl inside your stomach. जब कभी parietal cell के पास कार्बन डाइऑक्साइड अगर कंडेंस हो वाटर के साथ तो they will going to liberate a molecule called carbonic acid. This carbonic acid generally going to get dissociated to the formation of bicarbonate and H plus. आपको मालूम है bicarbonate will be rich in the blood compared to the H plus ion because the blood will be slightly alkaline and nature, and these bicarbonate can be reused for the traffic of H plus ion. Now this H plus ion is going to get descended to the lumen inside the stomach. ठीक है, H plus ion. In response to that H plus ion, potassium will going to take part. Potassium they are going to abundantly present in the lumen. They are going to get exchanged. And in this case, bicarbonate if they are going to kick out in order to maintain the fluid balance. ऐसा नहीं है पूरे चीज़ आप निकाल ले सकते. जब आप कोई माइनस पार्टिकल आप निकाल रहे हैं
तो उसके रेस्पिरेटरी पे कोई माइनस पार्टिकल एक्सचेंज पे देना पड़ता है। तो प्लस पार्टिकल निकाल रहे हैं, दैट एक्सचेंज यू नीड टू गिव द सम प्लस चार्ज पार्टिकल। तो आप देखिए H प्लस आयन में बच्चों यहाँ पर H प्लस आयन प्लस मॉलिक्यूल वाला चार्ज है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट में ऐसा समझा रहा हूँ, ठीक है। When it is coming out, in order to maintain the balance, electrical balance inside the cell of this parietal cell, we are pushing out the potassium inside. ठीक है। Now, while the bicarbonate is moving out, in response to that, chloride they are abundantly present in the environment. They are jumping in, and these going to get sent to the lumen. When H plus ion and chloride both together, they are going to get joined. They are going to make the HCl, hydrochloric acid. This was about the secretion of the hydrochloric acid. अच्छा, अभी gastric juices में सर gastric juice analysis कितना क्यों important है? Why? What is the need of the importance? Because there are certain diseases are there which are related to that. Can you name some diseases related to the gastric problem? The first thing we should be saying gastritis. Apart from that, acidity also known as एसिडिटी तो एक नॉर्मल टीवी एडवर्टाइजमेंट में भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर कैन बी कॉज व्हाट एल्स GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। जनरली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द एसिडिटी, you know, right? You're going to have the food stuff, these sphincter need to get closed when the digestion is going to take place. Sometimes what will happen, due to the overeating or due to the hypersecretion of the HCl, these sphincters sometimes will going to get accidentally open. ठीक है? Due to that opening of this involuntary opening of the sphincter, your HCl will try to reach to the esophagus, and that will lead to the heat sensation. एसिड कोई भी चीज अगर आपकी स्किन पे पड़े सीना जलता ही ना, ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है। जनरली आप यहां से आप चेक करें और थोड़े पेशेंट के अंदर क्या रहता है, हाइपर सेक्रीशन होता, ज़ोलिंगर इल्सन डिजीज नाम की एक चीज है जिसके अंदर अननेसेसरली इवन दो दे आर नॉट हैविंग द फूड व्हिच इज need to have hyper secretion, even though they will going to have the hyper type of secretion inside the stomach. ऐसे टाइप की डिजीजेस भी है, ज़ोलिंगर इल्सन डिजीज, ठीक है। तो rule out those kind of things whether the person hyper secretion of this thing, ओके। अपन चेक करें और बाजू के अंदर क्या होगा मालूम है, समटाइम एक क्लोरिटी आपको के कंडीशन है जिसके अंदर में पेशेंट को अंदर HCl सेक्रेट नहीं होगा, ठीक है। To rule out generally these kind of things, whether they are suffering from the hypersecretion or hyposecretion, we need to rule out the gastric function analysis, ठीक है। अभी हम gastric function analysis में ना दो चीजों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे अपन, एक है free acidity और एक है combined acidity। Free acidity it is referring to the secretion of the HCl, HCl की वजह से जो acidity develop हुई आपके अंदर इसको बोलते हैं free acidity। और सेकंड थिंग के बारे में आप बात करेंगे कंबाइंड एसिडिटी। कंबाइंड एसिडिटी वो एसिडिटी है जो आप फूड स्टफ के जरिए, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, जिसके जरिए आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी डेवलप होती है, HCl के नहीं बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ द कंबाइंड एसिड इज रिफरिंग टू द एसिडिटी व्हिच इज गोइंग टू गेट डेवलप्ड टू द लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो दो चीजों के बारे में आप ये गोइंग टू टॉक अबाउट फ्री एसिडिटी एंड कंबाइंड एसिड। So there are test panels are there from the ancient time to the modern days. We are going to test this thing in detail. Now, test to access the gastric function. The first test is the fractional test mean. It is one of the oldest method to check the segregation of the gastric juice. FTM. It is represented with the FTM. And these FTM repeatedly have been asked as a 3 marks question. It is an ancient method. Nowadays it is not very used. FTM, fractional test mean, fractional test mean, FTM. It involves the collection of the stomach content. Stomach content के बारे में जो बात हो रही है यहाँ पे, stomach content मतलब the left of gastric juice which is present inside your stomach. That will be called stomach content. By Ryle's tube. Ryle's tube किसको बोलते हैं बच्चों? Ryle's tube एक ऐसी ट्यूब का नाम है, आप जनरली देखे होंगे। The person who used to have lying on the ventilators and other thing, they can't have the food by their mouth. What they used to
to do? They used to send the pipe, they now almost reaching to the stomach. ठीक है, so that the liquid type can be sent in. ठीक है, that part nothing you to call it as a Ryle's tube. R-Y-L-E. मुझसे क्यों डालते हो? Ryle's tube. ठीक है, नाक की खाने की नली को दूसरा बोलते हैं, उसको Ryle's tube बोलते हैं. ठीक है, now it involves in the collection of the stomach content by the Ryle's tube by gastric stimulation giving a test meal. यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ? सुबह एम्प्टी स्टमक करने के बाद से आपको देखो कलेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस करते हैं, किसके जरिए करते हैं? Ryle's tube के जरिए करते हैं. कैसा करते हैं? They going to have a test meal, एक थोड़ा सा मील देते हैं उसको. गैस्ट्रिक जूस कब सेक्रेट होता? जब आपको अंदर पेट के अंदर खाना गया तो के अंदर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता, उससे पहले नहीं होता. तो उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट मील डिजाइन करें जिसके अंदर Ryle's juice एंड ब्लैक कॉफी एक पेशेंट को देते हैं अपन. देने के बाद में ऑन द एम्प्टी स्टमक दे यूज्ड टू कीप दिस राइस मील एंड द ब्लैक कॉफी. देन दे गोइंग टू इंसर्ट द Ryle's tube and they try to suck out the gastric content. ठीक है, कैसा करेंगे? The stomach is aspirated at every 15 minutes for 2 hours and they are going to check the analysis for the free and the total acidity in the laboratory. आप क्या कर रहे? पेशेंट को स्टमक क्या दे रहे? राइस दे रहे और एक कॉफी दे रहे. ठीक है, देने के बाद में आप क्या कर रहे? एक Ryle's tube इंसर्ट कर रहे. इंसर्ट करने के बाद you are trying to take out the stomach content to rule out the whether it is the acidity is related to the free acidity or is the total acidity. Free acidity and combined acidity को प्लस करें तो total acidity. आपको मैं बताता हूँ. ठीक है, this was the oldest method. Nowadays they are not using this method. But आपको मालूम रहना चाहिए ऐसा नहीं करते. 8 sample. The second type of test. अब यहाँ पे आप पूरे modifications पढ़ेंगे कैसा कैसा अपन rule out करते हुए आगे बढ़े. The second type of test is the alcohol test meal. Alcohol test meal. In this test, the meal in the form of the 100 ml of 7% alcohol is administered. ठीक है. This test is more rapid. The time can be reduced by 1.5 hours. Previously it was 2 hours, but it has been reduced to the 1.5 hours. As well as the thing which is using over here is the alcohol, 100 ml alcohol, 7%. Okay, 7%. Now, the sample collected at every 15 minutes for 1.5 hours. They are going to check for the free acidity and total acidity. In this case, the author wants to say here is that comparing to the fractional meal test, free acidity will be slightly higher in this case. ठीक है, ये मेथड भी अपन नहीं यूज कर alcohol test. We are moving to the third type of thing, that is the pentagastric stimulation test. Pentagastric stimulation test. The word itself representing that pentagastric एक ऐसा substance है जो stimulation कर रहा है. किसको stimulate कर रहा है? आपके gastric. For what? Secreting the Gastric juice. ठीक है. It's here. Pentagastric. It's in Okay. Pentagastric stimulation test. ठीक है. ये dry content is Now, this pentagastric, it is a synthetic peptide which stimulate the gastric secretion as the natural gastric secretion is going to get to. ठीक है. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना स्टिमुलेशन देने पे मैक्सिमम कितना होने आपका गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट कर सकता. So moderately you are triggering your gastric activity to rule out what is the maximum capacity of HCl that the body will get produce. बात समझ रहे हैं आपको? एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितना HCl आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती, एक हाइपर स्टिमुलेशन देने के बाद व्हाट इज द मैक्सिमम पीक ऑफ HCl your body going to get produced. We are going to see that. The procedure is going to get as follow. The stomach content in the fasting hour is aspirated. It will be called as the residual juice. Residual juice means left out juice. आप रात में खा के सो गए, सुबह उठे, आप लेबोरेटरी को गए तो उसके अंदर क्या कर रहे होगा, कुछ भी दिए बगैर आपको पूरा स्टमक आपका एम्प्टी कर रहे हैं. कैसा एम्प्टी कर रहे हैं? Ryle's tube. Ryle's tube डाल के पूरा स्टमक के कंटेंट को निकाल देते. ओवरनाइट आपके पेट के अंदर पड़ा हुआ था HCl, उसको पूरा एम्प्टी करके निकाल देते.
और इसको अपन क्या नाम दे रहे? रेसिडुअल जूस। ठीक है ना। उसके बाद द जूस एलॉबरेटेड फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। अब आप देखिए पूरा जूस निकालिए आपकी बॉडी के अंदर से, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना जूस के अंदर, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा तो भी जूस, गैस्ट्रल हमेशा कंप्लीटली खाली नहीं रहता, थोड़ा तो भी जूस रहता उसके अंदर। कौन सा जूस हो रहा है यहाँ पे? गैस्ट्रिक जूस। फर्स्ट आप क्या करें, इन द अर्ली मॉर्निंग यू हैव टेकन ऑल द लेफ्ट आउट जूस एंड वी हैव बीन कॉल्ड दैट थिंग एज अ रेसिडुअल जूस, ठीक है। उसके बाद आप खामोश बैठे, कुछ भी नहीं दिए पेशेंट, कुछ भी नहीं दिए, तो भी क्या हो गया, बॉडी आप थोड़ा थोड़ा करके 1 घंटे तक कुछ तो भी जूस लाया, ठीक है। गैस्ट्रल अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू टेक आउट दोस जूस आल्सो। यहाँ पे जूस से मुराद HCl है, ठीक है, कंटेंट। नाउ you are going to take that thing also and you are gaining that अच्छा एक जूस कलेक्ट कर लिए लेफ्ट आउट में, इसका नाम दिया रेसिडुअल जूस, एक कंटेनर में रख दिया। नेक्स्ट जूस आप 1 घंटे तक जो सेक्रेट हुआ, खामोश बैठे, 1 घंटे के बाद जितना भी सेक्रेशन हो, whatever the juice has been got secreted after the 1 hour you have tried to take out the juice and you have given the term called basal secretion. Basal secretion, it is a secretion which is going to get collected after emptying the stomach in the early morning. सुबह में जब पेशेंट आपके पास आया, उसकी सेक्रेशन निकाली, उसको बोल सकते हैं रेसिडुअल जूस। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी टेस्ट मिल नहीं दिए उसको, टेस्ट मिल लेज में उसको आप क्या करें, और जो जूस जो प्रोड्यूस हो रहा है 1 घंटे तक उसको भी निकालिए, उसको क्या बोले आप? बेसल रिएक्शन सिक्रेशन। नेक्स्ट आप क्या करें, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, Pentagastric is special type of substance, a synthetic peptide stimulation. You have given 5 milligrams per kg of body weight। एक पेशेंट का वेट करें आप, ठीक है, WEIGHT, WEIT, ठीक है, वेट करें, वेट, ओके। नाउ 5 milligrams per kg of body weight is given। क्या दे दिया? पेंटागैस्ट्रिन दे दिया। Then gastric juice is collected at 15 minutes for 1 hour, which represent the maximum secretion and the sample is tested for the acid free। अब आप देखिए, आप पहले एक बार आपके स्टमक को एम्प्टी करें रेसिडुअल जूस को, उसके बाद 1 घंटे तक खामोश बैठ गए, उसके बाद क्या करें, फिर एम्प्टी करें, उसको बोले बेसल सेक्रेशन। उसके बाद आप क्या करें, पेशेंट को पेंटागैस्ट्रिन। अब आप दोनों के दोनों का बाहर निकालिए, तो अब पेंटागैस्ट्रिन इमीडिएटली जाके इसकी स्टिमुलेशन करता। अब 1 घंटे तक निकाले आप, तो वो सेक्रेशन जो है वो मैक्सिमम सेक्रेशन होगा। क्यों सेक्रेशन मैक्सिमम होगा? लेफ्ट आउट जूस भी निकालिए आप, उसके अंदर से बेसल सेक्रेशन भी निकालिए। आप जो स्टिमुलेशन रहेगा, प्योर स्टिमुलेशन सेक्रेशन रहेगा, दैट्स द थिंग इज विल बी कॉल्ड एज अ मैक्सिमम सेक्रेशन, ठीक है। There are 2 terms, the thing has been given, basal acid output। What do you mean by the basal acid output? Refer to the acid output under the basal condition, ठीक है। basal acid output, what do you mean by the basal acid output? सुबह में आप पेशेंट का रेसिडुअल जूस निकालिए, उसके बाद में जितना भी एसिड निकला उसको आप क्या बोलेंगे? basal acid output, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी इज द मैक्सिमल एसिड आउटपुट। मैक्सिमल एसिड आउटपुट किसको बोलेंगे? आफ्टर गिविंग द गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन, MAO, आफ्टर गिविंग द गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन the acid which has been produced, it will be called as a maximum acid output, and there are normal values has been given for that, which the basal acid output is should be nearly about 4 to 10 millimoles per liter per hour, and this in this case 20 to 50 millimoles per liter, that is per hour। इतना तो भी secrete होना, इससे ज़्यादा अगर secrete हुआ it is related to the hyper secretion, इससे कम अगर secrete हुआ it is related to the hypo secretion। Coming to the third type of test, it is the augment histamine test। Now histamine will be considered as a natural stimulant which is going to responsible for the stimulation for the secretion of the HCl। जनरली आपके अंदर हिस्टामिन नाम का एक सब्सटेंस रहता है आपकी बॉडी के अंदर, वो किसमें हेल्प करता है मेरे भाइयों? आपकी बॉडी को HCl प्रोड्यूस करने के लिए। इट विल हिस्टामिन विल बी कंसीडर्ड एज नेचुरल। अच्छा, हिस्टामिन आप ब्लड में भी पढ़ते हैं, कौन सा सेल है जो हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है?
आगे के अंदर हिस्टामिन रहता वो सर लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट मास्ट सेल हिस्टामिन बोलना जरूरी है ना एंटी हिस्टामिन एक हिस्टामिन का तो ये है कि अगर इफ द हिस्टामिन इज रीचिंग टू द स्टमक इट विल लीड टू द स्टिमुलेशन फॉर द HCl ये बात समझ में आया अदर फंक्शन क्या है हिस्टामिन का व्हाट इज अदर फंक्शन ऑफ हिस्टामिन एलर्जी के लिए करेक्ट है एलर्जी के लिए कौन सा सेल है आईजी इसोनोफिल इसोनोफिल पढ़िए ये शुड बी रीडिंग आवर सेल ग्रुपिंग पहले तो इसोनोफिल सर सेल इज रिस्पांसिबल इसोनोफिल फिल बेसिफिल अभी पूरे लाइन से बोल रही है वो रहेंगे चलिए augmented histamine test histamine is a powerful stimulant of gastric secretion the basal gastric secretion for 1 hour अच्छा यहाँ पे basal gastric secretion मतलब जो हम लोग पहले निकाल लिए बोलिए जी कि basal gastric stimulation मतलब हाँ अभी बढ़ रहा है basal gastric stimulation एम्प्टी स्टमक में निकाल अब यहाँ पे क्या बोल रहा मालूम है हिस्टामिन एक पावरफुल गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट है प्रीवियसली अपन पेंटागैस्ट्रिन दिए थे यहाँ पे अपन हिस्टामिन दे ठीक है यहाँ पे मैंने क्या बोला आप 1 घंटे तक बेसल गैस्ट्रिक सेक्रेशन यूज कर निकालना बोल रहा हूँ बेसल गैस्ट्रिक सेक्रेशन मतलब खाली बात एम्प्टी स्टमक से निकाल रहा है गैस्ट्रिक जूस निकालने के बाद 1 घंटे तक जो जूस निकलेगा उसको बोलते हैं बेसल गैस्ट्रिक जूस ठीक है Now, histamine is going to get given nearly about 0.04 milligrams per body weight with administered subcutaneously. Subcutaneously मतलब subcutaneously मतलब intravenously superficial ऐसा नहीं सर डायरेक्टली इसमें ऊपर के लिए सबक्यूटेनियस अरे ये एकदम शॉप ना सबक्यूटेनियस डायरेक्टली स्टमक में इंटर सबक्यूटेनियस डायरेक्टली इसमें डायरेक्टली स्टमक में ऐसा डायरेक्टली स्टमक में स्टमक के लिए हिस्टामिन इज 0.04 नहीं जी भाई पढ़ना पड़ेगा देखो लाइट में बोले अगर में है तो कमा चलिए हिस्टामिन 0.04 milligrams per kg of body weight is going to get administered subcutaneously आप फर्स्ट टाइम रहते तो बोलता था and the gastric content are aspirated for next 1 hour previous में अपन for every 15 minutes में intervals पे अपन क्या कर रहे हैं ये सेम पेंटागैस्ट्रिन टेस्ट के जैसा ही है लेकिन इसकी जगह पे अपन पेंटागैस्ट्रिन की जगह पे अपन क्या हिस्टामिन दे पर मॉडिफिकेशन क्वांटिटी थोड़ा पहले अपन फ्रैक्शन टेस्ट करें उसके बाद अल्कोहल टेस्ट करें उसके बाद पेंटागैस्ट्रिन उसके बाद ऑगमेंटेड हिस्टामिन टेस्ट करें then you are going to take the acid content is going to get measured ठीक है ये मॉडिफिकेशन हो रही है भैया ऑगमेंटेड मतलब क्या बाइंडेड वाला बाइंडेड ओके उसकी फॉर्मूला नेक्स्ट टेस्ट इज द इंसुलिन टेस्ट भी अब इंसुलिन मतलब जो ग्लूकोज को रिड्यूस करता कौन सा सेल विच सेल इज रिस्पांसिबल फॉर बीटा सेल अच्छा एक व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ द इंसुलिन to reduce the glucose reducing the glucose ये तो अच्छे बच्चों को और एक क्या है अगर इंसुलिन अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में दीजिए तो ग्लूकोज तो कम होता है the person used to suffer from hypoglycemia as well as potassium is going to get altered potassium को भी बता देता हूँ जबरदस्ती का hypokalemia कॉज करता हूँ ठीक है तो इंसुलिन अगर जब कभी भी दे रहे किसी पेशेंट को तो इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करना बहुत जरूरी है भाई को बोलते इंसुलिन नॉट ओनली इट विल गोइंग टू डंप द ग्लूकोज लेवल बट आल्सो पोटेशियम को डंप कर देता हूं ठीक है खतरनाक है अगर पोटेशियम अगर अप एंड डाउन हुआ तो क्या होगा हार्ट अटैक एमआई इंडिकेशन कोई
The person can be suffer from the abnormal cardiac rhythm. MI बोलते हो it is directly heart रुका दे रहा. Bradycardia. हार्ट रुक जाता. ब्रैडीकार्डिया ट्रैकीकार्डिया हट Bradycardia and tachycardia. Heart sounds very slow. Abnormal cardiac. Now, insulin testing is also known as a Hollander test. Hollandr. Hollander test. Mainly done to assess the completeness of the vagotomy. Vagotomy procedure is it? Vagotomy में क्या होता है? The person थोड़े जनों को क्या होता है? इससे ज़्यादा vagotomy एक वेगस नाम एक नर्व भी है आपके अंदर. नो वेगस में नहीं वो लास वेगस वाला वेगस. सर ये वेगस वो पढ़ाए थे वो एक है सर वेगस उन्हें क्या करता मालूम वेगस वाला इन्हें जनरली जबरदस्ती का आपकी थोड़ों के अंदर certain patient what will going to get happen they are going to get hyper activated when they are going to get hyper activated they are used to give the more stimulation to the HCL. ठीक है वेगस नाम जो नर्व है आपके अंदर उन्हें क्या करता है सबके अंदर नहीं होता थोड़े पेशेंट के अंदर उन्हें हाइपर एक्टिव हो जाता. अच्छा सुपर एंटीजन मालूम. हाँ वो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया तो सुपर एंटीजन तो ये सुपर एक्टिव हो गया समझिए आप. सुपर एक्टिव हो गया क्या करता है जनरली स्टिमुलेशन कंटीन्यूअसली देते रहता जिसकी वजह से उन्हें बेचारा खाना नहीं भी खा रहा हेवी डाइट नहीं भी ले रहा उन्हें इवन तो दे यूज्ड टू सफर फ्रॉम द हाइपर सेक्रेशन. तो ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं वो नर्व को कट कर देते हैं सो दैट दे विल नॉट गोइंग टू हैव द स्टिमुलेशन. एक सर्टेन लिमिटेशन में दूसरे नर्व्स को सप्लाई करते थे तो थोड़े नर्व्स को अपन कट कर देते जिसकी वजह से क्या होगा द स्टमक विल नॉट गोइंग टू गेट द प्रॉपर स्टिमुलेशन सो द HCl क्वांटिटी कैन बी गोइंग टू गेट रिड्यूस. ऐसे थोड़े पेशेंट्स में हो जाता है जनरली अननेसेसरली ऐसे ऑटोइम्यून कंडीशंस आ जाते हैं जिसके अंदर अननेसेसरली दे आर गोइंग टू गिव द स्टिमुलेशन टू द HCl. हाइपर एसिडिटी वो कुछ नहीं पानी भी पिए तो उनको एसिडिटी होना शुरू ऐसे कंडीशंस होती है कॉमन है कंडीशन. नो थोड़े पार्ट्स कट कर दे उसके ठीक है पूरी नर्व नहीं कट कर दिया पार्शियल सेक्रेशन ठीक है. दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज वैगोटोमी वैगोटोमी. तो आप वैगोटोमी कर लिए समझिए प्रोसीजर करें आपका जो प्रोसीजर जो करे आप आगे करके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो चेक करने के लिए इंसुलिन टेस्ट करते हो. ठीक है ना. What you will do insulin 0.1 unit per kg of the body weight it administered IV. If the operation is successful insulin administration does not cause Acidity. increase in the hyperacidity. Okay. ठीक है. Output. This should be carried out safely and it can cause the hypoglycemia. एक टेस्ट करने जाके दूसरे टेस्ट के चक्कर लग सकते हैं. हाइपोग्लाइसेमिया. ठीक है तो ये आपको कहीं को ऐसा पढ़ाया जाना मानिए ये सर पेंटागैस्ट्रिन टेस्ट है जो आउटडेटेड है ये ऑगमेंटेड टेस्ट है आउटडेटेड है ये फ्रैक्शनल मीट टेस्ट है आउटडेटेड है. फिर हमको कहीं को बताया जा रहा है ये सब चीज़ें बिकॉज देयर आर अल्टरनेटिव थिंग्स. जब आप फॉरेन में जाके ये चीज़ों को प्रैक्टिस करें कोई पेशेंट के ऊपर आप ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस नहीं कर सकते. ठीक है पेशेंट थोड़े पेशेंट जैसे रहते हैं ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस आप नहीं कर सकते तो आपकी ये मेथड्स जाना होगा. पॉइंट 1. पॉइंट 2 आप जैसा आपका बैचलर्स आप खत्म करते हैं ना मास्टर्स में आपको पूरे रिसर्च टॉपिक्स मिलते हैं तो थर्ड ईयर में आपको थोड़े रिलेटिवली रिसर्च टॉपिक्स आपको मालूम है ना कौन सी भी चीज़ का रिसर्च करना रहता है ना आपको तो उसके लिए उसका बेस पहले मालूम करना पड़ता है. अब आपको ग्राम स्टेरिज में मालूम तुम बैक्टीरिया पे रिसर्च कर सकते हैं नहीं कर सकते. समझ रहे अरे मेरे को बैक्टीरिया पढ़ना है मैं ग्राम स्टेरिज कहीं को इतना इन डिटेल पढ़ूँ नहीं तुम्हारा ग्राउंड है वो. ठीक है तो दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू चेक आउट ईच एंड एवरी टेस्ट इन डिटेल. सो इंसुलिन टेस्ट मील टेस्ट आप कौन से टेस्ट में करते हैं भैया वैगोटोमी और अदर प्रोसीजर्स भी है जिससे जरिए आप मालूम कर सकते हैं. ठीक है now coming to the tubeless gastric analysis generally अपन ये टेस्ट कर रहे थे आज के दौर में tubeless gastric analysis. tubeless gastric analysis में अब यहाँ पे जो बताया गया आप पहले प्रोसीजर देख लीजिए और उसके बाद डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ द ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस. एक ये जो प्रिंसिपल है ट्यूबलेस गैस्ट्रिक एनालिसिस का इट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैटायन एक्सचेंज रेजिन. कैटायन एक्सचेंज रेजिन माने एक कैप्सूल है ठीक है रेजिन कंटेंट के कैप्सूल है वो पेशेंट को
खिला रहे हैं उसके अंदर क्या है देखिए आप, कैटायन एक्सचेंज resin that get quantitatively exchanged with the H plus ion of the gastric juice. The resin is then excreted in the urine, which can estimate it for an indirect measure of the gastric acidity. Now, Dynex blue containing azure A resin is employed in the tubeless gastric analysis. Now, what is the author is saying that आप एक resin ले रहे हैं जिसके अंदर कौन से टाइप के डाई है, डायोक्सिनेक्स ब्लू डाई आप डाल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था, मैंने एक कैप्सूल ले रहे हैं, कैप्सूल के अंदर ये नाम का केमिकल उसके अंदर भर रहे हैं, ठीक है, 0.1, ठीक है। भरने के बाद क्या कर रहे हैं को पेशेंट को खिला रहे हैं। ये जनरली कोसी पेशेंट के अंदर करते हैं, मान जो पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक सेक्रेशन नील है, ठीक है। गैस्ट्रिक सेक्रेशन अगर नील हुए तो फूड कंटेंट जैसे खा रहे ना आप वैसे चले, हाँ डाइजेस्टिव नहीं हो रहा तो क्या होगा फिर, ठीक है। नील है जिसके अंदर सेक्रेशन, तो ऐसे कंडीशन में आप हॉस्पिटल सीरियस कंडीशन करते हैं, ठीक है। तो चेक आउट दैट वेदर द फूड whether the proper HCl is getting produced or not. What you are doing, you are taking a capsule which is made up of the resin and you are trying to fulfill that thing into the resin, ठीक है। resin उसके अंदर कैप्सूल में डालकर पेशेंट को दे रहे, देने के बाद एक चेकिंग आउट फॉर द यूरिन। यूरिन के अंदर ये डाई दिखना, ये डाई दिखी तो it means that resin that has completely dissolved due to the secretion of HCl and you have founded the coloring pigment inside the urine. अगर ऐसा नहीं हुआ, ये डाई देने के बाद में भी, ये कैप्सूल देने के बाद में यूरिन का कलर चेंज नहीं हुआ और स्टूल के जरिए आपको कैप्सूल देके, then it is representing that there is a nil secretion of the HCl in that capsule. Point 1, ठीक है। ऐसा ये प्रोसीजर है, ठीक है। आप एक डाई ले रहे कैप्सूल कैप्सूल जनरली HCl के जरिए डिसॉल्व हो जाता, अगर डिसॉल्व हो गया तो आपकी यूरिन में वो कलर देखने को मिल जाता, इसका मतलब गैस्ट्रिक जूस नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ, देयर विल बी नो कलर चेंज इन द यूरिन एंड द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द achlorotia where the condition is representing that nil secretion of the HCl in the gastric, ठीक है। ये हाइपर सेक्रेशन के लिए टेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट 1 पॉइंट 2 हाइपर, अभी आप क्या अपनी बुक में इतना ही चल, लेकिन आगे के चीज़ों में नहीं, आप क्या कर रहे हैं मालूम है, now the modification must also contribute to get done. What you are doing, you are taking a resin capsule, वो आप पेशेंट को दे दे रहे हो, तो that resin capsule what they will do when they are going to reach to the stomach, they will try to take the gastric content juice HCl inside that and the capsule is going to little bit swell. It will act as an absorbent and that capsule is going to reach to the intestine and capsule can be regained from their stools and they can go and can squeeze out the thing and can take out the HCl from that. ये चीज़ है। थर्ड थिंग और मॉडिफिकेशन चल रही है, तो क्या करें ना, एक कैप्सूल लेते हैं, ठीक है, सेम कैप्सूल, उसको एक थ्रेड बांधते हैं, you will going to get inserted through your mouth and the thread is going to get tied to the chick, ठीक है। After reaching to the 1 hour, then it can again re-pull back and the content which has been got trapped inside the capsule can spill it out and go for the gastric analysis. These kind of procedures can be called in the tubeless gastric analysis. Previous सब में अपन एसिड निकालना है तो राइस ट्यूब डाल के निकालते हैं, लेकिन in this case we are not using the rice tube. In spite of that, either you are using the dye or using the resin capsule so that you can have the gastric secretion juice, ठीक है। Now there are certain clinical conditions are there which we need to get focused. Abnormality of the gastric function, increased gastric HCl secretion is found in the, मैं पहले बोला आपको, Zollinger-Ellison syndrome, एक ऐसा टाइप का सिंड्रोम है जिसके अंदर जनरली पेशेंट को ट्यूमर ऑफ द गैस्ट्रिन होता था, जिसकी वजह से हाइपर सेक्रेशन ऑफ द HCl is going to get produced unnecessarily. Zollinger-Ellison syndrome ये कंडीशन है, हाइपर सेक्रेशन, ठीक है। एज वेल एज डिओडिनल अल्सर्स में भी लोगों को गैस्ट्रिक हाइपर सेक्रेशन
होता एक्सेसिव हिस्टामिन प्रोडक्शन। अपन पहले ही बोले हिस्टामिन एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन देता है। किसको स्टिमुलेशन देता भैया? स्टमक है। HCl नेचुरल स्टिमुलेंट है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन प्रोड्यूस हो गया तो उन्हें क्या करता? इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द HCl. HCl in the gastritis, decrease in the HCl production going to get seen in the gastritic inflammation अगर हो गया तो then in cases of the pernicious anemia. Pernicious anemia विटामिन B12 vitamin B12 deficiency anemia. Intrinsic factors वो मैटर करते हैं इसके अंदर। पढ़े हमने को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है पैथोलॉजी में हो गया। कौन सा टॉपिक सर? विटामिन B12 खाली वो जबर सर थोड़ा लिटिल बिट बोले पढ़ने से नहीं क्यों विटामिन B12 लेसन ऐसी होती है। फ्री एसिडिटी और एसिडिटी ऑफ द HCl एसिड, ठीक है। अब आप दो चीजों को चेक करें। कंबाइंड एसिडिटी, इट इज एसिडिटी ड्यू टू द ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। आप खाने जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से H+ ion concentration बढ़ा, इसको टू पार्टिकल का कंबाइंड एसिड। टोटल एसिडिटी इट इज नथिंग बट फ्री एसिडिटी प्लस कंबाइंड एसिडिटी। आपको इतना करना जरूरत है। एसिडिटी तो हो रही भाई पेशेंट को, एसिडिटी तो हो रही इसकी वजह से हो रही, हाइपर सेक्रेशन की वजह से हो रही है आपका HCl। हाइपर सेक्रेशन खुद ब खुद हो रहा है या फिर कुछ भी खाए तो हो रहा है, तो उसको रूल आउट कैसे करेंगे? अगर फ्री एसिडिटी लेवल अगर बढ़ गया है, फ्री एसिडिटी लेवल से अगर बढ़ गया है, इट इज ड्यू टू द हाइपर सेक्रेशन ऑफ द HCl। कंबाइंड एसिडिटी लेवल से अगर बढ़ गया है, इट इज ड्यू टू द फूडिंग नहीं जो आप खा रहे हैं जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट अपन डिजाइन कर रहे हैं, determination of the free acidity and the total acidity। ना आप पूरे जूसेस जो निकाले ना, रेसिडुअल जूस ऑफ द बेसल जूस, उसको अपन टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा टेस्ट करने माने पिपेट 10 ml of the gastric juice in the 100 ml of conical flask। 100 ml निकाल रहे थे, 10 ml ले रहे, 10 ml किस में डाल रहे? 100 ml के conical flask में डाल। अगर 100 ml नहीं लिखना है तो खाली conical flask भी याद रखो, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। 10 ml of the gastric juice is going to get juice in the 100 ml of the conical flask, then add 2 drops of the Topless indicator. Note the formation of the red color, ठीक है। अगर रेड कलर नहीं प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, what you have taken? You have taken a 10 ml gastric juice, then you have added the Topless indicator। Topless indicator is a generic indicator which is used to you used to change the color when they are going to come in the contact of acidic materials। जब acidic materials में Topless indicators अगर आए, indicator use अपन देखें टाइट्रेशन जब कभी भी करें इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो टॉपलेस अपन डालने के बाद में अपन क्या करें? वेट करें। कब तक वेट करें? रेड कलर फॉर्म। अगर रेड कलर फॉर्म नहीं हुआ इन दैट जूस, व्हाट इज गोइंग टू गेट हैपन? यू विल सी इफ येलो कलर अपीयर्स given the gastric juice does not contain free acidity, that means जो भी gastric juice आप निकाले उसके अंदर कुछ भी एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ। ऐसे कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? सर वो भी जूस अगर निकाले, गैस्ट्रिक जूस मतलब यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट है, खाली पानी भी हो सकता हूँ, ठीक है। अगर निकाले, अगर उन्हें रेड कलर नहीं हुआ, रेड कलर हो गया तो इट विल कंटेन द एसिड। अगर रेड कलर नहीं हुआ तो इसके अंदर कोई भी एसिड नहीं है। Now after that, after forming the red color, we are going to titer with NaOH until the red color changes to the orange, then we are going to record the titer, ठीक है। आप क्या करेंगे भैया? पहले 10 ml गैस्ट्रिक जूस लिए, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट जो भी खाया आपने, उसके बाद में आप क्या करेंगे? हम added 2 drop of Topless indicator, then you need to wait for the they are going to change up into the red color। red color करने के बाद में आप क्या करेंगे? इसको टाइटर करेंगे, वो सीधा कॉनिकल फ्लास्क को लेके जाके ब्यूरेट के नीचे रख दिया। ब्यूरेट के नीचे रख के आप क्या करें? NaOH को स्लोली रिलीज करें। कब तक रिलीज करें? जब तक रेड कलर ऑरेंज कलर में नहीं चेंज हो गया। जब पूरे आ गया ना, उसको स्टॉप करें, स्टॉप करके उसकी रीडिंग लिए। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा? ठीक है।
फ्री एसिडिटी रिफर करते। उसके बाद में आप क्या करें मालूम, देन इन दैट थिंग यू हैव एडेड 2 drops of phenolphthalein and continue the titration until the pale pink color appear। पहले आप कौन सा कलर देखे, ऑरेंज कलर आया, ऑरेंज कलर आते आप क्या करें, किसकी रीडिंग लिए, ठीक है, फ्री एसिडिटी। आप फ्री एसिडिटी नहीं, कंबाइंड एसिडिटी भी मालूम करना है आपने, तो कंबाइंड एसिडिटी के लिए आप क्या ऐड करें इसके अंदर, और सॉरी फिनाफ्थलीन ऐड करें आप। उसके बाद में आप फिर से आप टाइट्रेशन करें, टाइट्रेशन करें तो कौन सा कलर फॉर्म हुआ, pale pink color going to get formed, and we are going to take the second titer, we are going to do the combined acidity। चलिए, clinical significance, the normal value of the free acidity is 10 clinical unit per 100 ml and total acidity is 45 unit per 100 ml। अगर मेरे को total acidity मालूम करना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, free acidity plus combined acidity। In A chloridia, एक कंडीशन है जिसके लिए A chloridia, chlorohydria, there will be the no secretion of HCl when both HCl and ठीक है, A chlorhydria में there will be the no secretion of the HCl। ये 3 मामले में पूछता है, A chlorhydria, what do you say, ये 3 मामले, ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर HCl प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, HCl के साथ अगर पेप्सिन भी नहीं प्रोड्यूस हुआ किसी पेशेंट के अंदर, तो ऐसे पेशेंट को क्या बोलते हैं आप, इट इज आल्सो नोन एज एचलिया गैस्ट्रिशिया, इकाइलिया गैस्ट्रिया, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा, दैट इज रिकॉर्डिंग एज ये काइकोलिया, व्हाट डू यू से, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर HCl एज वेल एज पेप्सिन भी नहीं प्रोड्यूस हुआ, दैट इज दिस। हाँ, प्रोड्यूस हो रहा है HCl बट वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, दैट इज विल बी कॉल्ड एज हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, ठीक है। हाँ, ऐसी कंडीशन है हाइपर सेक्रीशन हो रहा, विल कॉल्ड एज हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, ठीक है। वंस यू नीड टू गो थ्रू दिस, आई थिंक आई गॉट सो डीप इनटू दिस क्लास, ओके। 5 मिनट